Combination of enlisted political parties shall be entitled to obtain one election symbol for an election only if each party constituting such combination submits the certificates and statements referred to in sections 202, 206, 209 and 210. An election symbol already allocated to a political party shall not be allocated to any other political party or combination of political parties. 4. Where a political party or combination of political parties, severally or collectively, fails to comply with the provisions of Section 209 or 210, the Commission shall issue to such political party or parties a notice to show cause as to why it or they may not be declared ineligible to obtain an election. 5. If a political party or parties to whom show cause notice has been issued under subsection 4 fails to comply with the provisions of sections 209 and 210 or section 210, the Commission may, after affording it to or them an opportunity of being heard, declare it or them ineligible to obtain an election symbol for election to Parliament, Provincial Assembly or a local government, and the Commission shall not allocate an election symbol to such political party or combination of political parties in subsequent elections. मेरी reading ये है. आपकी reading है, but this section has been challenged. Whether the wordings of this section. I agree with this. This is the main section which confers power to the Election Commission to question your certificate submitted under section 209. I agree with this section. I don't agree with the interpretation. 216 भी पढ़ लें. I agree with the section, but I don't agree 216 भी पढ़ लेते हैं. with the interpretation. हाँ, जब आपकी मुझे भी पता पूछ रहे हैं ब्रेक करनी तो है मगर कब आप लोग पूछें कि कब ब्रेक करेंगे. मतलब I'm good whenever you want to. 5-7 मिनट करना चाहिए. जब बस और कर लें लंच ब्रेक. Application for allocation of symbol. See, I didn't because I've learned something new from. It's for each general election. Subject to fulfillment of the provisions of this chapter and the rules, a political party shall make an application to the Commission for allocation of a symbol of its choice for each general election within the period specified by the Commission in its press release, and the application shall contain the list of वो symbols. skip करें अब 17 पे आ जाएं 217 पे. Allocation of symbols. Because it appears that a party may change its selection, may not want a particular symbol now. The Commission shall allocate a symbol to a political party if the political party complies with the provisions of this Act. ये बात. जी. If the political party complies with the provisions of this Act. सही है. So even if we ignore 2155, what do you make of 2171? So 2171 is as per the provisions of the Act. If the provisions of the Act specify something, then I will have to comply with it. लेकिन provisions of the Act specify in 215 कि अगर मैंने 209 का सर्टिफिकेट दे दिया तो मुझे एलिजिबिलिटी हो जाती है. अली ज़फर साहब, वो बार-बार सर्टिफिकेट की बात आ रही है ना. जी. ये जो कागज के टुकड़ों पे कुछ चलता नहीं है. हम भी जब कोड ऑफ लॉ की तरह भी चलते हैं, कोई कागज का टुकड़ा ले आता है, हम उस पर कुछ ज्यादा उस पर नहीं रखते हैं. असली बात है एक चीज हुई या नहीं हुई. आप कहते हैं अभी रात है, मैं कागज का टुकड़ा पेश करूंगा. हम आंखें तो नहीं चुराएंगे कि रात नहीं है दिन है. तो हमें इस कागज के टुकड़े से हमें कोई, आप कागज टुकड़ा ना भी देते, मैं यहाँ भी जाता हूँ, मगर अगर आपने इलेक्शन करवा लिए होते हम तो उसको नजरअंदाज कर देते. चलें आपने कुछ वायलेशन की, अगर कोई पेनल्टी लगती है लगा दें, इससे ज्यादा हम नहीं जाएंगे कि आपको पॉलिटिकल पार्टी को खत्म कर दें या कुछ कर दें या डिसीट कर दें. तो बात असली कागज के टुकड़े की नहीं हो रही है. बात असली जो हो रही है वो एक बुनियादी हकूक, जब आप जिसकी जंग लड़ रहे हैं आर्टिकल 17 में, तो वो बुनियादी हकूक आप अपने मेंबरान को दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं. आपके मेंबरान कह रहे हैं कि हमसे आपने बुनियादी हकूक छीन लिया है. ठीक है. और इसकी एक उनके सिर्फ कहने से तो कुछ नहीं होगा. कहाँ इलेक्शन हो रहा है, नॉमिनेशन पेपर का एक
स्पेसिमिन ही दिखा दें कि ये था, इतने लोगों ने फाइल किया, इतने लोगों ने कंटेस्ट किया, सारों को आप लिया है कि जी अनइलेक्टेड आ गए। तो 50 के ज्यादा लोग आप दिखा रहे हैं, 50 से ज्यादा मेरा ख्याल है अपोज है पूरे पाकिस्तान में। अब 50 लोगों के कोई नॉमिनेशन फॉर्म कोई आपने फाइल की होंगे, कोई रिजेक्ट हुए होंगे, कोई अपीलें हुई होंगी नॉमिनेशन की। Sir, let us now. असल में देखिए डिक्टेटरशिप्स का जो आगाज होता है ना वो घर से होता है। जब बच्चा की बात पेरेंट्स सुनते हैं, नाजायज बातें, जब किसी बड़े की नाजायज बात वो सुनते हैं, फिर वो बात बाहर भी जाती है। फिर ये नहीं होता है बाहर जाके जमहूरियत हो जाती है, घर में डिक्टेटरशिप रहेगी। अब देखिए इंग्लिस्तान में अभी इलेक्शन हुआ है, इलेक्शन नहीं हुआ है, वो उनकी अपनी पार्टी ने मुस्तरद कर दिया। पहले वो थे कैमरॉन, फिर बोरिस जॉनसन आए, इंटर पार्टी इलेक्शंस हुए, फिर उसके बाद एलिजाबेथ ट्रस आई, उनको मुस्तरद कर दिया। अब जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर है ऋषि सुनाक, ये सब अपनी पार्टी के थे और उनके मुखालिफत हुई एक दूसरे से, बयानबाजी हुई, टेलीविजन पे भी आया, सब कुछ आया। तो ये तो अगर ऐसी किसी को कागज के टुकड़े पे कहते हैं जी ऋषि सुनाक साहब बन गए प्राइम मिनिस्टर, तो आपके ख्याल में इंग्लिस्तान के लोग इसको कबूल कर लेते या उनके अपनी के पार्टी के लोग इसको कबूल कर लेते? वो इलेक्शन हुए ना बाकायदा, उनकी विद इन इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए ना। हम ये बात नहीं कह रहे हैं, टेक्निकल बातों में हम बिल्कुल नहीं जा रहे हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, 100% खड़े हैं। बाकी अब इनके सारे मुस्तरद कर देंगे आर्ग्यूमेंट, टेक्निकल बातें, मगर बुनियादी बात दिखा देंगे इलेक्शन हुआ बस। ठीक है जी, ये सर। अच्छा अली जफर साहब, ये जो डॉक्यूमेंट्स अली जफर साहब एक मिनट, जी, जो आप बता रहे हैं कि फॉर्म सबमिट हुए थे इलेक्शन के लिए, तो वो आपने वेबसाइट पे दिया है कि क्या हुआ? हाउ डू दे केम टू नो कि इलेक्शन हो रहे हैं? क्योंकि ये तो आपने वेबसाइट पे दिया ही नहीं है, तो ये मखसूस लोगों को कैसे पता लगा कि ये डेट है फॉर्म जमा कराने की, उसी डेट पे स्क्रूटनी एंड एवरीथिंग वाज डन? अच्छा एक काम करें आप, जरा कंप्यूटर जिसके पास है ये जरा चेक कीजिए, इनकी वेबसाइट है insaf.pk, या आपके लिटरेट पे लिखिए www.insaf.pk। कोई नॉमिनेशन पेपर है इस पे? सर नॉमिनेशन पेपर जी योर ऑनर फाइल कर नहीं, ऑन करें, वेबसाइट ऑन करें, वेबसाइट ऑन करें www.insaf.pk खोलें। क्या वेबसाइट नहीं है ये? योर ऑनर जी, अच्छा वेबसाइट है, मुझे बताएं। ये उनसे वेबसाइटों पे ये होते हैं, वेबसाइट खोली ये मैं आपको सर एक CMC एक सेकंड आपकी वेबसाइट पे देख लेते हैं। बोलो नॉमिनेशन फॉर्म ओके नहीं है ना, फॉर्म तो नहीं डाले होंगे, नॉमिनेशन फॉर्म तो नहीं डालते, डाउनलोड करके भरना होगा ना। हाँ स्पेसिमेन जो है, हाँ जो स्पेसिमेन होता है ना, स्पेसिमेन नॉमिनेशन। अब हम भी अपनी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे चले जाएं, हम वो दे देते हैं कि जिसको अप्लाई करना है लॉ क्लर्क्स के लिए, वो पेज 34 पे जो आपको पेपर बुक दिए सर, ब्लैंक फॉर्म जो इस पे तो पेजिंग नहीं है। कौन सी पेपर बुक? आप कह रहे हैं 8.5 लाख मेंबर्स हैं आपके, अगर 8.5 लाख में से अगर किसी को भरना हो फॉर्म, वो वेबसाइट पे नहीं है आपका। एक आप ना बोलिए ना टेक द प्रिंट आउट फ्रॉम द वेबसाइट, ये कह रहे हैं सर द ब्लैंक्स। जी वो ये कह रहे हैं कि जो अली दवर साहब, मैं एक स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ ना, आप हमारी वेबसाइट अभी खोल लीजिए जी, जितने मुलाजमीन कोई नौकरी की हम फॉर्म डाल देते हैं, स्पेसिमेन फॉर्म, कि अब ये नॉमिनेशन पेपर है। खैर हमारा तो इलेक्शन नहीं होता, हमारे जो एप्लीकेशन है, आपकी वेबसाइट पे ये कह रहे हैं कोई फॉर्म नहीं है सर। जो इंस्ट्रक्शंस दी हैं इन्होंने, इंस्ट्रक्शन की बात नहीं है, फैक्ट की बात है। वो के वेबसाइट इंस्ट्रक्शंस कौन दे रहा है? आप खुद हैं पार्टी। नॉमिनेशन फॉर्म्स जो हैं वो अवेलेबल थे चारों सेक्रेटेरिएट ऑफिसेज में, जो इस्लामाबाद, पेशावर, बलूचिस्तान, सिंध, लाहौर थे, और नंबर दो वो वेबसाइट पे भी थे। अगर आप इजाजत दें, अभी खोलिए, आपके सामने दिखा दें इनको वेबसाइट, आप क्लिक करके हमें दिखा देना। अब जब इलेक्शन हो गया तो फिर उसके बाद वो वेबसाइट से हटा दिए गए, लेकिन अगर आप इजाजत दें तो ये वाला प्रोसेस जो है, जिस जगह इलेक्शन किस तरह हुआ, कैसे हुआ, वो सारा का सारा इस एप्लीकेशन। आपका जो इलेक्शन प्रोग्राम है ना, उसमें तो एक दिन का ही तो टाइम है नॉमिनेशन का, सेम डे जिस तारीख को नोटिस इशू हो, ये सही बात है, उसी दिन नॉमिनेशन डालना है जी। वो फॉर्म मिलेंगे कहाँ से? तो वो आदमी वहां से क्वेटा वाला
ने फॉर्म लिया आपके लोकल सेक्रेटेरिएट से, जी, ये कहाँ लिखा हुआ है? कहीं आपने बताया दुनिया को कि आप हमारे लोकल सेक्रेटेरिएट से कलेक्ट कर लें नॉमिनेशन पेपर? सर वो जितने हमारे पार्टी मेंबर्स हैं, दे आर फुली अवेयर ऑफ वेयर द ऑफिसेज आर, लोकल ऑफिसेज आर। हम देखें जबानी बातों पे नहीं जाते, आप इतने वाइड स्टेटमेंट्स दे देते हैं, कोई बैकिंग, कोई कागज का टुकड़ा कुछ तो दिखा देना। वो दिखाएं कि जी आप जाके वहां से कलेक्टर, वो क्वेटा वाला फिर उसको जमा किधर करेगा? इस्लामाबाद में करेगा, क्वेटा में करेगा, कहाँ फेंकेगा? नॉमिनेशन पेपर इस्लामाबाद से आएंगे सर, वो इस्लामाबाद आना पड़ेगा उसको। नहीं, दैट इज द प्रोसेस ऑफ द इलेक्शन। नॉमिनेशन फॉर्म्स टू बी रिसीव, आपका इलेक्शन शेड्यूल है जो मैं दोबारा देख रहा हूँ, जी, ये 29/11/2023 को ही रिलीज हुआ है, जी, इशू हुआ है जी, और आपने नॉमिनेशन फॉर्म भी उसी दिन को इनवाइट कर लिया 29/11 को ही, जी, और नॉमिनेशन फॉर्म को रिसीव होना है 1/12 को एट इस्लामाबाद। जी। सो देयर वर 3 डेज और किसी को भी रोका नहीं हमने, दे वर आल्सो अवेलेबल सर। नॉमिनेशन फीस फॉर्म कितनी का थी? वसूल जो है ना वो नहीं लिखा हुआ। फीस कितनी? 50,000 50,000 जी। हाँ 50,000 50,000। अब देखिए आप, 50,000 वो दिखाइए, बैंक में जमा किए, कैश में लिए? इसमें तो खैर लिखा नहीं है कुछ भी आपके शेड्यूल में, तो ये बैंक में जमा किए, कैश में लिए? कैश में लिए सर। किधर है वो पैसे? किसकी कैश में कैसे? कैश में कैसे पॉलिटिकल पार्टी ले रही जेब में है? डाल- अकाउंट में देना होंगे, कुछ तो कागज का टुकड़ा दिखा देना। बैंक डिपॉजिट 50,000 रुपए की उसने कर दी। एक्सप्लेन कर दूं कि कैसे हमने प्रोसेस। उसके अलावा भी देखें नॉमिनेशन फॉर्म आप 50,000 12 को देख रहे हैं ना, थोड़ा सा फिजिकली पॉसिबल नहीं लग रहा है मुझे ये, मतलब ये अगर फर्स्ट कीजिए सर, कोई contest process जो करना है, चाहता, ये आपको तो जरा explain देख लेना करते हैं। इसको आप प्लीज, क्योंकि देखें लॉ के मुताबिक चलना है, वैसे अगर फैसले करने हैं तो फिर माजी में भी ये चीजें होती रही हैं कि अगर आप बगैर लॉ को देखे फैसले करें तो एटलीस्ट आई एम नॉट रेडी टू दैट। आप बोलिए क्वेश्चन ऑफ लॉ पे बात करें आप, अगर आप कर सकते हैं तो। सर। ये जो है ना, जो हमारे बैरिस्टर साहब और जो सी हैं, नहीं, आप देख Chief लें, आप Election उन पे Commission, बर्डन ना डालिए, वो हम आप पे रखना एक्सप्लेन चाहते करते हैं प्रोसेस, आप- प्रोसेस आपका- एक्सप्लेन करते आपका हैं अपना शेड्यूल कि है, प्रोसेस क्या हुआ। आपसे बात हो रही है ना, इट्स तो मैं, अगर मेरे से बात हो रही है सर, तो लेट अस स्टार्ट विद भी देख लें साथ खड़े में आपके, बेशक देखें, ये तो पेपर आपके हैं, हम हाँ। अपने पास से थोड़ी जनरेट कर रहे हैं तो बिल्कुल ये है सर। 90 पे आप देखिए, इसमें देखिए फिजिकली कोई हरक्यूलिस किस्म की कोई एक्सरसाइज हो सकती थी तो हो सकती थी। सर- अब आप पढ़े पहले ये देखिए, जी। 29/11 का लेटर इशू होता है और 29/11 ही नोटिस इनवाइटिंग नॉमिनेशन फॉर्म है। चले मान लिया ये पहले दिन हो गई। एक सेकंड यार, रुक जाए सर Please, one by यार, one, वन मिनट रुक जाए one by one सर। देखते 29 को इसका मतलब है कि हमने पहला प्रोसेस फॉलो कर दिया। नॉमिनेशन फॉर्म्स आर अवेलेबल। प्लीज लेट मी explain to you, Right. and you can answer that. ठीक है, नंबर 2 पे है nomination forms to be received by returning officer at Islamabad. ठीक है, For all office bearers till 5 PM with spot scrutiny. ठीक। 8.5 लाख लोगों के अगर फॉर्म आएंगे इलेक्शन में या कंटेस्ट करने में, या चले 50,000 भी आएंगे, तो वो आने चाहिए 1/12 को, ठीक है। और अपील अगेंस्ट ऑब्जेक्शन और रिजेक्शन ऑफ नॉमिनेशन फॉर्म 1/12, यानी एक फर्ज कीजिए कि आप फॉर्म फाइल कर रहे हैं, आप भी मेंबर हैं, आप कंटेस्ट करना चाहते हैं, आपका रिजेक्ट हो रहा है फॉर्म, जिस दिन फॉर्म रिजेक्ट होगा उसी दिन आपको अपील फाइल करना है। अब वो इस्लामाबाद वाले में अपील फाइल होगी, बलूचिस्तान से भी, पिशावर से भी, कराची से भी, पंजाब, लाहौर, सारी जगहों से। ये एक दिन करना है, दोनों दिन, ठीक है ना। डिस्प्ले ऑफ नेम कंटेस्टिंग पैनल भी उसी दिन लगना है 1/12 को। ठीक है। अपील कोई मैं इसको object नहीं कर रहा था, this is how it is. हुए, रिजेक्ट हो गए, नॉमिनेशन फॉर्म की अपील चली, अपील भी डिस्पोज हो गई। नॉमिनेशन फॉर्म को पैनल को लगाना भी 1/12 को ही है। पोलिंग डेट 2/12 है, ठीक है जी। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट बाई CAC 2/12 और इलेक्शन रिजल्ट 3/12। ठीक है, यही है सर। इसमें फिजिकली पॉसिबल है, आप खुद बताइए कि ये कौन से इलेक्शन हो सकते हैं इस तरह। सर अगर किसी आपके पाकिस्तान बार काउंसिल के इलेक्शंस होते हैं ना, आप हर सूबे में वहाँ पे बूथ बनते हैं ना वोट डालने के लिए, किसी सिंध के लोग सिंध में डाल रहे होते हैं, पंजाब के पंजाब में, लाहौर में हाई कोर्ट्स में ही बनते हैं ना। जी। आपका भी 8.5 लाख मेंबर्स का इलेक्शन आप कर रहे हैं और आप इस्लामाबाद में सब कुछ हो रहा है, ठीक है, और फाइल इस्लामाबाद में होनी है। इलेक्शंस की कोई वेन्यू कहीं मेंशन नहीं है, वो चिमकनी पिशावर में हो रही है। तो ये चीजें इलेक्शन कमीशन ने देखी हैं। अब आप इस लॉ को अगर लेके बैठे to your तो lordships. हम ये हाँ, कहें कि हाँ। कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है। आपकी- पिशावर हाई कोर्ट ने सिर्फ ये कहा है कि हाई इलेक्शन कमीशन का इख्तियार ही नहीं है देखना, तो आप
आपको हमने 215 में पढ़वा दिया। नहीं पढ़ा है, मैं आपने पढ़ा ही नहीं सर, मैं कहाँ आया 2015 में। चले पढ़िए। और सर दो चीजें आपसे मैं इसको ऑब्जर्वेशंस की रिस्पॉन्स कर दूं। तो ये कह रहा हूँ, पहली बात जो आप कह रहे हैं चाहिए ना, अगर सारी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ यही होना चाहिए, जिस तरह वो इलेक्शन देख रहे हैं, पहली बात के साथ नहीं, किसी और के भी इलेक्शंस डिफेक्टिव हैं, बिल्कुल ईसीपी को देखना चाहिए और इसी तरह के ऑर्डर्स पास करने चाहिए। पहली बात तो ये है सर, वो हमने कल पूछा इनसे ईसीपीसी के औरों के खास नहीं, हुआ है, किसी का नहीं उनका कोई ऑब्जेक्शंस नहीं आए उनकी ये फॉर्म 65A के ऊपर, अगर आए हैं तो वो भी इनसे पूछ लेंगे अभी। सर जो आपकी जो आपने शेड्यूल को ऑब्जेक्ट किया और आपने कहा कि टाइम लिमिट नहीं है, I have nothing to say. I am not objecting it. Zafar sahab, I I'm not don't- objecting it. नहीं, I am My let lord me answer my this. lord is not objecting it. नहीं, देखिए, my lord is let me answer. my lord is simply pointing it out that it's humanly impossible to comply with the schedule. मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। चले वो भी हम मान लें ह्यूमनली पॉसिबल है, बट द क्वेश्चन इज कि वो क्वेटा वाला आदमी आएगा, इस्लामाबाद में पेपर देगा, फिर इलेक्शन किधर जाके वेन्यू किधर होगा। फिर हमने एक मजीद आपने जो एक अभी पेश हमें किए कहा पेपर बुक, उसमें आपने लिखा नॉमिनेशन फीस आपने कहा पता 50,000 रुपए, तो किधर हैं 50,000 रुपए? वो बैंक में आप कहेंगे ना बैंक में जमा कर दो या मुझे कैश में दे दो, कुछ तो किसी चीज का तो हमें कागज दिखा दीजिए ना। मैं दिखा रहा हूँ, लेकिन मैं या तो आप एक देखिए, या तो कहें कि जी हमने इलेक्शन नहीं I always try तो वेयर इज द 50,000 रिसीट? I always try to argue sir in a way that respects the court. And अगर मुझे आप एक ऑब्जर्वेशन आई जो मेरा इम्प्रेशन हुआ, in order to understand and reply, let me first respond to that. जी, And then I will of course come back to this and I'll come back to my arguments. I'm very we are well always you are very you know you very properly argue the cases. तो मैं absolutely no nothing personal, हम आपसे बिल्कुल मुतासिर हैं हमेशा। So I wanted to just say, I just wanted to say कि जो observation थी, 50,000 की रसीद भी दे। जो observation है, अब दूसरों से It's not observation. If you say to me, this is not my observation, this is your own letter which I am reading to you. ठीक है। So about my letter which your lordship is reading to me, इलेक्शन शेड्यूल में तो कुछ नहीं कर रहा, ना मैं कर सकता हूँ। about the letter that your lordship is reading to me, my submission would be कि अगर कोई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास इख्तियार है तो वो रूल्स बना दें और कहें कि कल को हर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपना इलेक्शन शेड्यूल इस तरह बनाएगी, तो फिर तो मुझे समझ आती है कि मैं आई एम फेलिंग टू कंप्लाई विद सम रूल्स। अभी चूंकि सारा कुछ छोड़ा हुआ है एक पॉलिटिकल पार्टी पे, तो आप बिल्कुल ऑब्जर्व कर सकते हैं कि मे बी आपके मुताबिक ये शेड्यूल वाज नॉट राइट, मे बी दिस इज अनरीजनेबल, मे बी योर लॉर्डशिप कैन मेक सम ऑब्जर्वेशन। देखिए लेकिन हम आपको आपका शेड्यूल सर आंखों पे जी, हमें उसकी कंप्लाइंस दिखा दें। ठीक है, वो अब मैं आता हूँ सर। हाँ, बस उस पे आ जाएंगे। लेकिन मैं अब सेकंड पॉइंट पे आ रहा हूँ। आपकी पार्टी का तो स्लोगन ही ये है, जुर्रत देना लोगों को, जी, है बिल्कुल। निचली लेवल तक आपने इनको एम्पावर करना है सबको। यहाँ इतनी सीक्रेसी है आपकी इलेक्शन में, इतनी बॉलीडनेस है, आप लगता है कोई नहीं, कोई सीक्रेसी छुपा नहीं। के- मैं बिफोर दैट मैं सेकंड ऑब्जर्वेशन पे आ रहा था। Just to a lighter mode, I'm just picking your own words, level playing field. So the members have not been given level playing field just because of this अब वो election. ये ना हो कि लेवल प्लेइंग फील्ड से प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट। ये मैं कह रहा हूँ। देखिए, अगर आप किसी देखें, हम दूसरी बात कर लें ना, वी आर ऑल प्रैक्टिकल पीपल जी। अगर आप पे हमला किया होता आपके मुखालिफिन ने, ठीक है, वो एक अलग बात हुई, ओ देखिए ये लोग इलेक्शन नहीं कर रहे हैं, फिर आप कहते तुम किधर इलेक्शन कर रहे हो, वो एक अलग बात है। आपके अपने लोगों ने कहा कि जी मैं इलेक्शन तो लड़ने दें, बस इतनी सी बात है। आप हमें दिखा दें कैसा भी किया, आगे पीछे हो Sir, let गया। us look at the जो मैंने पेपर बुक भेजी है सर, हाँ, कौन सा पेज दिखाना चाहते हैं आप? स्टार्ट करते हैं सर 20। अब वो वी आर स्टार्टिंग विद दैट टाइम जहां इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि 20 दिन में आपने इलेक्शन कराने हैं। इलेक्शन कमीशन को छोड़ दें जी, अब 20 दिन टाइम गुजर रहा है सर। हाँ? 20 दिन का टाइम है, द क्लॉक इज टिकिंग। नहीं, वो तो कब से लगे हुए हैं। नहीं 20 दिन का टाइम अगर आप इधर से ना शुरू करें, वो तो 2021 से आपके पीछे लगे हुए हैं कि भाई इलेक्शन करा ठीक है, चलें, वो आपकी बात मान ली, लेकिन मेरी बात ना माने। नहीं, मेरी बात बिल्कुल ना माने, कागज का टुकड़ा है। तुम साहब कौन सा पेज है वो? नहीं, बिल्कुल वो जो इलेक्शन कमीशन का पहला खत था कि इलेक्शन कराएं, जब पीटीआई की हुकूमत थी। ठीक है सर, उसको
I concede. Concede नहीं, हाँ. you please deny it. नहीं, I concede. मैं कहता हूँ 20 दिन का टाइम था हमारे पास. देखिए शायद आपने पढ़ा ना हो, दिखा देते हैं. तो ये केस, ये पॉइंट जाएगा मैलिफिडे पे इलेक्शन कमीशन के. There was a document you referred to yesterday. My lord, that is A letter show cause notice. 4th May 2021, Where would that be? Page 391 in part 2. 391 part 2. Part 2. देखिए असली बात शुरू होती है आगाज यहाँ से. ठीक है सर. सो बेसिकली जो भी हमने गलतियां की उन्होंने फाइनली 20 दिन दे दिए हमें. अब 20 दिन में हमने नहीं, इलेक्शन उन्होंने आपको कराना है. देखा शो कॉज नोटिस दिया, ठीक है. ये जरा पढ़ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. अगर आप इसको पहला पैराग्राफ पढ़ लें, एंड टू कंट्रवीन द प्रिस्क्राइब्ड लीगल प्रोविजंस एज पॉलिटिकल पार्टी शैल बी इशूड शो कॉज नोटिस बाय द इलेक्शन कमीशन एंड इलेक्शन सिंबल वेयरऑफ शैल बी विथड्रॉन enabling the party ineligible to obtain an election symbol for the elections to come. ये आज की बात नहीं है, ये मई 21, 22, 23, 24, मतलब ये 3.5 साल पुरानी बात है. इसके आप जवाब में इनको खत लिखते हैं कि जी मुझे आप बराए करम 1 साल कोविड आ गया तो मुझे टाइम बढ़ा दें. उन्होंने कहा जी चलो बढ़ा दिया. उन्होंने सब कराया था सारी पॉलिटिकल पार्टीज का. बात ये नहीं है, बात ये है कि वो अगर ऐसी बात है तो वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे हैं. उन्होंने तो बड़ी बहादुरी दिखाई कि आप हुकूमत में होते हुए हुकूमत की पार्टी को नोटिस भेज दिया शो कॉज. ठीक है, तो बहादुरी हुई ना उनकी, तो मैलिफिडे क्या हुई. चलें ठीक है सर. दो नहीं देखिए ना इसको आप आई एम नॉट कंटेस्टिंग दैट. नहीं कंटेस्ट करें. आपने कंटेस्ट नहीं, आपने कंटेस्ट किया, आप गए लाहौर हाई कोर्ट, वो एक इशू अलग पड़ा हुआ है, उसको अभी अलग है. आई एम नॉट कंटेस्टिंग दिस फैक्ट कि उन्होंने लेटर लिखा. आई एम नॉट कंटेस्टिंग द फैक्ट कि हमें टाइम दिया. देखिए एक होता है, देखिए मोटी मोटी बातें ना, एक होता है ट्रिप समवन ऑन टेक्निकलिटीज. सो we are not bothered with this provision, that provision. We are interested simply in democracy. In democracy. ठीक है. You can't have democracy outside and not inside. Agreed. ठीक है. बिल्कुल. If you have allegations against other parties, please file complaints. There are no other complaints before us. अगर उनके पीपल्स पार्टी कोई और पार्टी के लोग चले जाए उनके पास इलेक्शन, हमारे यहाँ इलेक्शन नहीं हुआ, वो देख लेंगे क्या होता है, फिर वो हमारे पास आ जाएगा अगर आया. अभी तो एक इशू आ गया हमारे पास, हमें ये देखना है केस. ठीक है. अब हमने इनसे कल ये पूछा था भाई एक ही पार्टी को, कहा जी सबको भेजा है, आपने ये भी मान ली सबको उन्होंने नोटिस दे दिया. तो कह रहे हैं, बट आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट राइट नाउ. मेरा अभी पहला पॉइंट है 215. जफर साहब अगेन 215 से पहले आई एम रिपीटिंग जी. The whole case, the nucleus of this appeal is that the election tribunal has jurisdiction. Election tribunal नहीं sir. This and the Peshawar High Court says that election tribunal has no jurisdiction. Election commission से. Election commission has no jurisdiction. जी. ठीक है ना. तो हमारा जो केस है, the nucleus of the entire controversy is to see whether the order passed by the election commission was rightly and in accordance with the law, and they have the jurisdiction to pass such order or not. Correct. And the High Court has said that they had no jurisdiction to pass. Correct. So now this section 215 is quite pertinent to read here. वही मैं पढ़ रहा था सर. They have a right to issue show cause notice and decide the controversy. नहीं sir. If you violate section 209. हाँ जी. ठीक है. If I violate 209. Yes. That is important. If you ये है वो. ठीक है. तो if you read section 215, that confers the jurisdiction to the election commission. ठीक है. That is not That does not. challenge. Nobody With has ever respect. challenged the vires of section 215. Let us read it now sir. अब आपने पढ़ लिया था मैंने. Now let me submit. 215 को पूरा पढ़ लें. मैंने पढ़ा. अब मैं उसकी सबमिशन करता हूँ. नहीं, ये सब section 5 नहीं पढ़ा आपने perhaps. पढ़ लिया सर. फिर से पढ़ लेता हूँ. चलें. If a political party or parties to whom show cause notice has been issued under subsection 4 fails to comply with the provisions of section 209 or section 210, the commission may, after affording it or them an opportunity of being heard, declare it or them ineligible to obtain an election symbol for election to Majlis Shura, Parliament, Provincial Assembly or local government, and the commission shall not allocate an election symbol to such political party or combination of political parties in subsequent elections. So my submission on this 215, I've read all of it. एक प्रोसीडिंग्स बता रहे हैं, राइट ऑफ हियरिंग देते हैं आपको. मैं वो पॉइंट वो नहीं है. कॉन्सिक्वेंसेस के पावर्स भी हैं उनके पास. मेरा वो पॉइंट है ही नहीं जी.
अच्छा, आप मेरा पेशावर point का two one- जजमेंट है बिकॉज यू आर मेकिंग सबमिशंस, तो मैं आपको वो भी बताता हूँ ताकि यू विल मिक्स योर आर्गुमेंट एंड Okay. रिस्पॉन्ड इट ठीक है क्वाइट प्रॉपर्ली। Right, sir. पेज 20 पे आप देखिए पेशावर हाई कोर्ट का जो जजमेंट है अंडर चैलेंज, जी। वो ये कहते हैं द कंबाइंड रीडिंग ऑफ सेक्शन 208, 209 एंड 215 does not give any impression that ECP has any jurisdiction to question or adjudicate the intra-party election of political party. This is the main crux of this Peshawar judgment. ये मुझे पता है, मैंने ही And बहस if की। you cross this barrier, then obviously there is no case of Election Commission of Right. Pakistan. That is my But first- under the law, if they have the jurisdiction to check the intra-party elections and compliance of your own constitution, then obviously you are out. बिल्कुल। अब सर, अब ये हो गई आपकी बात। जी, थैंक जी, यू, अब आप जवाब थैंक यू दीजिए। वेरी मच। नाउ सर, मेरा 215 इज द क्रूशियल सेक्शन। 215(1) जो कहता है, बेसिकली इट सेज कि अगर आपने